Hello students, today we will learn the semiconductor lasers. So we have learned the solid state lasers, and in solid state lasers we have learned the solid state lasers and gas lasers. And in gas lasers we have learned the helium neon gas laser, argon ion gas laser, and CO2 gas laser. Okay, so and in solid state lasers we have learned the ND YAG, ND glass, and ruby lasers. Now the turn of semiconductor lasers. So in semiconductor lasers, what are the semiconductor lasers and what are the properties of semiconductor lasers, and some basics of the semiconductor lasers we will today learn. So semiconductor based light sources such as light emitting diodes, LED, and laser diodes have application as the photonic components in science, engineering, and technology. सेमीकंडक्टर बेस्ड लाइट सोर्सेज जैसे कि एलईडी हो गया एंड लेज़र डायोड्स हो गया, इनका बहुत बहुत एप्लीकेशन है फोटोनिक कंपोनेंट्स, साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में. ओके, एंड दीज आर यूज्ड एज स्कैनर्स फॉर प्रोडक्ट्स इन शॉपिंग मॉल्स. शॉपिंग मॉल्स में आपने देखा होगा जो स्कैनर्स वगैरह होते हैं जिनसे कि स्कैन करके फिर आपको प्रोडक्ट की जो प्राइस होता है वो बताया जाता है. सो in that case and in that region, these type of semiconductor lasers are used. And at home, these semiconductor lasers are found in CD and DVD readers or laser printers. So you have all you have uh, heard about the laser printers. So in laser printers these semiconductor lasers are used, and in CD and DVD also these semiconductor lasers are used. uh, Also in a communication system as sources. So as the source in communication system, the laser semiconductor lasers are used to provide the source to communication system. Okay, and the laser diodes are based on semiconductors such as gallium arsenide, gallium indium arsenide, gallium nitride, etc., and the other semiconductor material we will learn further in the lectures. So they cover the range of wavelengths from the blue region to the infrared. So here is the advantage of the semiconductor laser, that this is used from the blue region to the infrared region. So they cover the range of wavelengths from blue region से लेकर के infrared region तक की जो wavelength होती है, इस पूरी बैंड को ये जो सेमीकंडक्टर लेजर्स हैं ये कवर करते हैं. यानी कि इस पूरी बैंड तक की जो कलर हैं उन वेवलेंथ को ये लेजर्स इमिट करते हैं. ओके, the characteristics of the semiconductor lasers. Semiconductor lasers की कुछ properties हैं और that's why these are very useful. So what are that properties? First is that they are small in size. Small होते हैं size में बहुत, and can be directly modulated by varying the drive current, and they can be directly modulated by varying the drive current. If drive current is varying, देन दे कैन डायरेक्टली बी मॉडुलेटेड. ठीक है, अगर ड्राइव करंट को हम वेरी करते हैं तो ये मॉडुलेट हो जाते हैं डायरेक्टली. एंड वेरी इफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में चेंज करने के लिए दीज आर वेरी इफिशिएंट converters. And these semiconductor lasers can be designed to emit a broad range of wavelengths, as we have seen that this cover the range of wavelength from blue region to the infrared. So that why these lasers can be designed to emit a broad range of wavelengths. Okay, so wavelength की एक broad range को जो है ब्रॉड रेंज का जो है हम डिज़ाइन कर सकते हैं by using the semiconductor lasers. Now some other properties are that first is semiconductor lasers are unique when compared to the other type of lasers. That is, they are very small. They operate with relatively low power input. यानी कि इनको ऑपरेट करने के लिए बहुत ही कम पावर की
पावर इनपुट की नीड होती है. ओके, दे आर वेरी इफिशिएंट as we have seen that they are very efficient converters of electrical energy to light. So these are very efficient. Also, these operate in a different way. They require the merging of two different material, and the laser action occurs in the interface between those two materials. तो ये इसमें क्या होता है कि ये जो लेज़र सेमीकंडक्टर हैं ये वैसे ऑपरेट नहीं करते जैसे कि हमारे सॉलिड स्टेट लेज़र हो गए या फिर गैस लेज़र्स जो हो गए उनकी तरह ये ऑपरेट नहीं करते हैं. इसमें क्या होता है, हमें दो डिफरेंट मटेरियल की नीड होती है. जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि जैसे ये गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम इंडियम आर्सेनाइड, ये कुछ गैलियम नाइट्राइड, ये कुछ सेमीकंडक्टर लेजर्स हैं. ठीक है, तो इनमें जो है ये दो टाइप के मटेरियल, जैसे गैलियम और आर्सेनाइड है तो इसमें गैलियम और आर्सेनिक दो टाइप के मटेरियल्स होंगे जिनको कि आपस में मर्ज किया जाता है. सो मर्जिंग ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स एंड द लेजर एक्शन अकर्स इन द इंटरफेस बिटवीन दोज टू मटीरियल्स. तो जो ये लेज़र एक्शन होता है ये इन दो मटीरियल्स के बीच में जो इंटरफेस होता है, ठीक है, वहाँ पर ये जो लेज़र एक्शन होता है वहाँ पे होता है. यानी कि गैलियम और आर्सेनाइड का जो इंटरफेस होगा उस पे जो है ये लेज़र एक्शन जो है होता है. ओके, सो वन मटेरियल हैज़ एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक मटेरियल आपका एन टाइप मटेरियल होगा एंड द अदर मटेरियल हैज़ एन डिफिशिएट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और एक मटेरियल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, और वन हैज़ एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप मटेरियल, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी. ठीक है, तो दो टाइप ऑफ मटेरियल्स जो हैं, टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड इन द सेमीकंडक्टर लेजर्स, एंड दोज टू टाइप ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स are merging with each other, and the laser action occurs in the interface between those two materials, यानी कि उनके इंटरफेस पे जो है ये लेज़र एक्शन वर्क करता है. Okay, so the difference between the electron in semiconductors and other laser media is that in semiconductors all the electrons occupy and share the entire volume of the crystal. यहाँ पर जो डिफरेंस है मेन, इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर एंड अदर लेज़र मीडिया, सेमीकंडक्टर्स में और अदर लेज़र मीडिया में इलेक्ट्रॉन्स का जो डिफरेंस है वो कैसा है कि सेमीकंडक्टर्स में जो है वो ऑल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं और शेयर करते हैं एंटायर वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल का पूरा वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं एंड शेयर करते हैं. ठीक है, वाइल अगर हम सिंपल यहाँ पर हमने किसकी बात की थी, सेमीकंडक्टर्स की बात की थी कि सेमीकंडक्टर्स की अगर हम नॉर्मल बात करें कि सेमीकंडक्टर्स, हमें पता है सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में जिनकी कंडक्टिविटी होती है, कि इनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर से थोड़ा ज़्यादा होती है और कंडक्टर से जो है कम होती है, इसीलिए इनका नाम पड़ा है सेमीकंडक्टर, यानी कि ये इनका नाम ही सेमीकंडक्टर है. ठीक है, यानी कि ना ये कंडक्टर है और ना ये जो है इंसुलेटर है. सो सेमीकंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन है वो कैसा है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एंड शेयर इंटायर वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल. लेकिन अगर हम बात करें अदर लेज़र सिस्टम की, जैसे कि एनडी याग लेज़र, रूबी लेज़र, ठीक है, द लेजिंग एटम आर स्पेस्ड फार अपार्ट एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड टू देयर रिस्पेक्टिव आयंस. तो यहाँ पर लेजिंग एटम्स जो हैं वो क्या हैं, ये बहुत दूर दूर जो है स्पेस, दूर दूर लोकलाइज होंगे, दूर दूर जो है वो ये जो है सिचुएटेड होंगे, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आर लोकलाइज टू देयर रिस्पेक्टिव आयंस, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस के साथ जो है लोकलाइज होंगे विद वेरी लिटिल इंटरेक्शन विद अदर आयंस. दूसरे आयंस के साथ उनका बहुत कम इंटरेक्शन होगा. ओके, सो दस इन अ सेमीकंडक्टर द क्वांटम मैकेनिकल wave functions of all electrons overlap with each other and according to Pauli exclusion principle cannot occupy the same quantum state. और Pauli exclusion principle के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगी उनकी जो है सेम क्वांटम स्टेट नहीं होगी. ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम स्टेट है वो क्या होगी, अलग अलग होगी. ओके,
So in semiconductor, the quantum mechanical wave function of all electrons overlap with each other and according to Pauli exclusion principle cannot occupy the same quantum state. Thus, each electron in the crystal must be associated with a unique quantum state. इसलिए जो है क्रिस्टल में प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो है एक यूनिक क्वांटम स्टेट होगी, ठीक है। अगर एन एल एम जो है और एस, ये होते हैं आपके चार क्वांटम नंबर्स। तो एन एल एम एस में से आपका जो है अगर ये तीनों भी सेम है तो एस की वैल्यूज जो हैं वो एस की वैल्यू जो है वो क्या होंगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। अगर इसकी जो है एन एल एम जो है अगर सेम है तो एस की वैल्यू जो है प्लस हाफ और माइनस हाफ से डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पर जो है दो अलग स्टेट हो गए हैं। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास जो क्वांटम स्टेट है वो यूनिक होगी। ओके, सो द एटम्स कंप्राइजिंग द सेमीकंडक्टर व्हेन आइसोलेटेड हैव द सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो एटम्स होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर को बनाते हैं, व्हेन आइसोलेटेड हैव द सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, उनका जो है सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। दस इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट एटम्स मे बी इन द सेम एनर्जी स्टेट्स। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो जो डिफरेंट एटम्स को बिलोंग कर रहे हैं वो एक सेम एनर्जी स्टेट में हो सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को बिलोंग करते हैं। ओके, सो हाउ एवर when the atoms are brought close together to form the solid, जब एटम्स को सॉलिड बनाने के लिए पास पास लाया जाता है तो इंटरेक्शंस अमंग द एटम्स लीड टू अ स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स। सो जब एटम्स को जो है पास पास लाया जाता है एक सॉलिड फॉर्म करने के लिए तो उनके बीच में जो है इंटरेक्शन होता है, और जब इंटरेक्शन होता है तो ये इस इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी लेवल्स जो होते हैं एटम्स के वो स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। या सपोज ये एक एनर्जी लेवल था, वो तीन लेवल्स में जो है वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, ठीक है। और इस वजह से इस लेवल्स की स्प्लिटिंग की वजह से जो है एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी बैंड बनते हैं। सो विच आर सेपरेटेड बाय द फॉरबिडन रीजन्स ऑफ द एनर्जी, जो कि फॉरबिडन रीजन्स ऑफ एनर्जी से मिल करके बने होते हैं, इसमें जो है सेपरेटेड होते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन रीजन्स जो होते हैं उनसे ही सेपरेटेड होते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, दिस फिगर शोज a schematic diagram in which each energy level is represented by a horizontal line. So each energy level is represented by a horizontal line. ये भी एक एनर्जी लेवल है, ये भी एक एनर्जी लेवल है, ये भी एक एनर्जी लेवल है और ये भी एक एनर्जी लेवल है। इसी तरीके से यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। एंड ईच बैंड, जैसे कि आप देख रहे हो, ये है कंडक्शन बैंड और ये है आपका वैलेंस बैंड, ठीक है। So in each band formed by a group of energy levels, there are as many sub-levels as there are atoms in the crystal. तो ये जो एक बैंड है ये क्या है, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कई सब लेवल्स हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, एटम्स जो हैं वो क्रिस्टल में क्या है, कई एटम्स हैं, ठीक है। तो कई जो है सब लेवल्स होंगे। ओके, एंड सिंस द नंबर ऑफ एटम्स इज़ वेरी लार्ज, within each band the allowed energy values are almost continuous। क्योंकि जो है एटम्स की संख्या बहुत ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बैंड में जो अलाउड एनर्जी वैल्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूस हैं। मतलब कि जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अलाउड एनर्जी वैल्यूज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूस है। सपोज़ ये वाले, इस वाले की बात करें तो यहाँ भी अलाउड, क्योंकि प्रत्येक जो है एटम्स की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो ईच बैंड जो है वो अलाउड एनर्जी वैल्यू को अलाउड जो कर रहा है, जैसे ये एक एनर्जी वैल्यू को अलाउड कर रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट जो है वो एक अलाउड एनर्जी वैल्यूज जो है वो ऑलमोस्ट क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ओके, सो इफ़ द एनर्जी गैप, ओके, थर्ड पॉइंट ये था, द हाइएस्ट एनर्जी बैंड इन अ सॉलिड दैट इज कंप्लीटली फिल्ड और ऑक्यूपाई बाय इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन इज नोन एज द वैलेंस बैंड। तो ये जो है आपका वैलेंस बैंड है। ये वैलेंस बैंड क्या है, जो हाईएस्ट एनर्जी बैंड है,
यानी कि इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी जिसकी होगी इन अ सॉलिड दैट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। और ये कम्प्लीटली फिल्ड है, इसमें देखेंगे आप कि जितने भी जो एम्प्टी स्टेट्स थी वो एटम्स ने जो है फिल्ड कर दी है। ठीक है, सो कम्प्लीटली फिल्ड है और ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स है एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ने ये जो यहाँ पर खाली जगह थी उनको क्या कर दिया, भर दिया है। Okay, so this is known as the valence band, and the next higher band that is either vacant or partially occupied is known as the conduction band. इससे भी ऊपर एक बैंड है जिसको कि हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, और ये या तो क्या रहता है कि आइदर वेकेंट रहता है या पार्शली जो है ऑक्यूपाइड रहता है, या तो ये पूरा का पूरा खाली रहेगा जैसे अभी दिख रहा है, या पार्शली जो है ये क्या रहता है, ऑक्यूपाइड रहता है। पार्शली ऑक्यूपाइड मतलब जैसे कि ये दो जिसमें लेवल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स ने जो है ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, और ये दो जो है वो खाली हैं, ऊपर के लेवल जो है वो खाली हैं, नीचे के लेवल जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि पार्शियली ऑक्यूपाइड है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जैसे कि अभी दिखाया गया है ये क्या है, एक वेकेंट वेकेंट है ये। ठीक है, सो वेकेंट है मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन ने जो है ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ है। सो इस तरीके के बैंड को हम कहते हैं जो कि नेक्स्ट हायर बैंड होता है वैलेंस बैंड से, इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। सो इफ द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज लार्ज, अगर इसके बीच में यानी कि ये जो आपका वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है इसके बीच में अगर जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है ये एनर्जी। ठीक है, तो सपोज ये हम मान लेते हैं कि Eg और ये जो है वो ग्रेटर देन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तब क्या होगा, देन थर्मल एक्साइटेशन फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड इज वेरी रेयर। तब यहाँ से जो इन इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल एक्साइटेशन होगा इस लेवल में जाने के लिए, इन लेवल्स में जाने के लिए, इस बैंड में जाने के लिए इनका जो थर्मल एक्साइटेशन है, थर्मल एक्साइटेशन मतलब अगर हम टेम्परेचर जो है बढ़ाएं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपर लेवल्स या इस बैंड कंडक्शन बैंड में चले जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हैं, थर्मल एक्साइटेशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। ठीक है, एंड इन सच अ केस द मीडियम बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। तो इस केस में जब ऐसा होता है कि एनर्जी गैप जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है दैट इज़ वेरी वेरी हाई। ठीक है, अगर ये जो एनर्जी गैप है दैट इज़ वेरी वेरी हाई, अगर ये ज़्यादा होगा तो तब जो हमारा मीडियम है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? इंसुलेटर की तरह। ठीक है, इंसुलेटर की तरह। लेकिन अगर क्या होगा कि ये जो गैप है ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुआ, ये वाला गैप, ये जो Eg है ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुआ। ठीक है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुआ ये गैप, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कैन गेट थर्मली एक्साइटेड फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। तब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ थर्मली एक्साइटेड हो सकते हैं, एंड दे एग्जिबिट अ फाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट टेम्परेचर्स हायर देन 0 केल्विन। तब जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टिविटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि हम थर्मली एक्साइटेड कब होंगे, जब हम उन्हें टेम्परेचर देंगे। तो जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं और थर्मली एक्साइटेड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कब हो रहे हैं, जब इनके बीच में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। ठीक है, और जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तब जो है कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा। कंडक्शन नहीं हो रहा मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं थर्मली एक्साइटेड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो
थर्मल एनर्जी जो होती है एट रूम टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन इज अबाउट 25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इतनी जो है वो क्या होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी इतनी होनी चाहिए, ओके। सो विच इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर, दिस। तो सच मीडिया जिसमें कि कंडक्शन होगा उसको हम कह देते हैं, सच मीडिया आर रेफर टू एज दी सेमी कंडक्टर्स। तो इनको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये हमने एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है सेमी कंडक्टर्स को डिफाइन किया है कि सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं। एनर्जी गैप, वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है या एनर्जी जो डिफरेंस है, ठीक है, एनर्जी का इतना डिफरेंस है या एनर्जी गैप बोल सकते हैं हम, उसके आधार पर हमने ये देखा कि कौन से जो मटेरियल्स हैं वो इंसुलेटर्स होंगे और कौन से मटेरियल्स जो हैं वो क्या होंगे, सेमी कंडक्टर्स होंगे, ठीक है। सो ये आपने देख लिया कि सेमी कंडक्टर्स हम एनर्जी लेवल्स के आधार पर हम कैसे हम सेमी कंडक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अब इसकी जो प्रोसेस है वो कैसे होती है लेजिंग एक्शन में, ओके। सो व्हेन अ फॉरवर्ड बायस, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा जब आपने फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड या ये फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग पढ़ी होगी तो आपने ये भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी को मैं आप थोड़ा सा यहाँ पे बता रही हूँ, बट लेज़र के पर्सपेक्ट में मैं बता रही हूँ उसमें कि व्हेन अ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज प्लेस्ड अक्रॉस दिस जंक्शन। अब ये कौन से जंक्शन की बात कर रहे हैं, जो ये फिगर में दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो ये है, ये एक सेमी कंडक्टर लेज़र मटेरियल ले रखा है एंड दैट इज गैलियम आर्सेनाइड, ओके। सो गैलियम आर्सेनाइड है तो इसमें एक एन टाइप, इसमें एन टाइप भी होगा और पी टाइप भी होगा, ओके। पी एन और पी टाइप दोनों, क्या आपको पता है सेमीकंडक्टर में क्या होगा, एक जो दो मटेरियल से मिलकर के बना है, एक मटेरियल जो है इसमें वो क्या होगा, रिच इन इलेक्ट्रॉन होगा और एक जो मटेरियल है वो होगा डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक के पास जो है इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी, एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो एन टाइप और पी टाइप उसी बेसिस पे हम बोलते हैं मटेरियल्स को, ठीक है। तो उन दो मटेरियल्स का जब हम मर्ज कर लेते हैं तो हमें एक सेमीकंडक्टर मिलेगा और जो मर्जिंग जो इंटरफेस होगा उस पर जो है लेजिंग एक्शन, उस इंटरफेस पे जो है लेजिंग एक्शन अकर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक गैलियम आर्सेनाइड है, तो यहाँ एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप दोनों इसमें शो किया हुआ है, ठीक है। और ये इसकी जो है एनर्जी लेवल्स भी दिखा रखी हैं, ये ठीक है। तो यहाँ पर अब आप ध्यान देना, इस फिगर को देख करके आप देखना कि व्हेन अ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज प्लेस्ड अक्रॉस दिस जंक्शन as indicated, electrons are forced into the region from the n type material and the holes are forced into junction from the p type material। तो जब हम एक फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज में क्या होगा, जब हम इस एन टाइप को जो है हम नेगेटिव से जोड़ देंगे और पी टाइप को जो है हम किससे जोड़ देंगे, पॉजिटिव से, ये ठीक है। अभी मैं इसको नहीं बता रही हूँ, ये वाला जो ये है इसको नहीं बता रही मैं, केवल इन दोनों को देखेंगे आप कि वो एक लेयर हमने लगा रखी है। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमने ये दे दिया, ठीक है, यानी कि हमने फॉरवर्ड बायसिंग दे दी है इस मटेरियल को एंड इट इज प्लेस्ड फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज प्लेस्ड अक्रॉस दिस जंक्शन, ओके। देन इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स्ड इनटू द रीजन फ्रॉम द एन टाइप। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एन टाइप रीजन से क्या होंगे, एन टाइप से क्या होगा, रिपेल होंगे, ठीक है। तो
इलेक्ट्रॉन्स जो है रिपेल होंगे फ्रॉम द एन टाइप इनटू द रीजन, electrons are forced into the region from the n-type material, and the holes are forced into the junction, into the junction होगा ये, सॉरी यहाँ पर into the junction होगा, into the junction from the p-type material। यानी कि ये जो आपने पहले भी पढ़ा है, ये n और p है और ये इस तरीके से होगा। तो जब हम इसको फॉरवर्ड बायस दे रहे हैं, ये फॉरवर्ड बायसिंग है ना, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोर्स होंगे जंक्शन में जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिपल्सन मिलेगा उन्हें, ठीक है, और यहाँ से भी रिपल्सन मिलेगा होल्स को, और वो भी क्या जाएंगे, जंक्शन में जाएंगे। यानी कि दोनों को जो है फोर्स किया जाता है जंक्शन में जाने के लिए, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में। तो दोनों जंक्शन में पहुंचेंगे, ओके। होल्स आर फोर्स इनटू जंक्शन फ्रॉम दी पी टाइप मटेरियल। तो जैसे कि आपने देखा, ये हमारा जंक्शन है, ओके, ये एन टाइप है एंड ये पी टाइप है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं वो इस जंक्शन में फोर्स किए जाते हैं ड्यू टू दी फॉरवर्ड बाइसिंग, ओके, ड्यू टू दी फॉरवर्ड बाइसिंग। अब दीज इलेक्ट्रॉन्स विद नेगेटिव चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ फोर्स हुए हैं तो इनके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और होल्स अगर यहाँ फोर्स होकर के इस जंक्शन में आए हैं तो उनके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और क्या होगा, कुछ उसमें से एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे इस जंक्शन में। जब दोनों आ गए, इलेक्ट्रॉन भी और होल्स भी, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों आ गए, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। तो आफ्टर कोलिजन दे न्यूट्रलाइज ईच अदर, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देंगे, और इन दिस प्रोसेस इमिट अ रिकम्बिनेशन रेडिएशन। और जब वो रिकम्बाइन, इनको इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। जब क्या होगा, इस जंक्शन में, ये जो जंक्शन है, अब ये जंक्शन की जो लेयर है वो थोड़ा सा मोटी हो गई, जिसे आप डिप्लीशन लेयर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ जब रिकॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, तो ये एक रिकम्बिनेशन प्रोसेस होती है। जो इसमें क्या होगा, एक रिकम्बिनेशन रेडिएशन, इस रिकम्बिनेशन प्रोसेस के दौरान एक रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। उस रेडिएशन को हम कहते हैं रिकम्बिनेशन रेडिएशन, ओके। सो एक रिकम्बिनेशन रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होगी, एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन दी एन टाइप मटेरियल एग्जिस्ट एट अ हायर एनर्जी, यानी कि कंडक्शन बैंड, देन दी होल्स, यानी कि वैलेंस बैंड। अभी हमने देखा कि कंडक्शन बैंड जो है वो, सॉरी, कंडक्शन बैंड जो है वो वैलेंस बैंड से कहाँ, हायर एनर्जी पे होते हैं, ठीक है। कंडक्शन बैंड ऊपर होगा, वैलेंस बैंड नीचे होगा, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन टाइप मटेरियल में एग्जिस्ट एट अ हायर एनर्जी बैंड, हायर एनर्जी देन दी होल्स, ठीक है। यानी कि जो एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर यानी कि कंडक्शन बैंड में होंगे, और जो होल्स होंगी वो वैलेंस बैंड में होंगे, ओके। सो दिस एनर्जी डिफरेंस इज डिजाइनेटेड एज द बैंड गैप। तो इस एनर्जी डिफरेंस को, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस आया है एन टाइप और पी टाइप की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वजह से, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो बीच में गैप है, एनर्जी गैप, वो आया है 0. सॉरी, ये तो थिकनेस है इसकी, वो कुछ एनर्जी का जो है एक क्या होगा, गैप होगा कि उनके बीच में कितनी एनर्जी है, ठीक है। ये है एनर्जी गैप, दिस, ठीक है, दिस, ओके। सो दिस एनर्जी गैप इज नोन एज द बैंड गैप ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when the recombination radiation takes place. So different material combinations have the different band gaps and thus emit different wavelength of light. तो जितने भी अलग अलग टाइप्स की मटेरियल हैं, अभी तो हमने केवल यही पढ़ा कि गैलियम आर्सेनाइड, जैसे कि एक ये हो गया, सेमीकंडक्टर लेज़र जो हो गया, तो ऐसे कई डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं, अभी हम आगे देखेंगे।
तो डिफरेंट मटेरियल कॉम्बिनेशंस जो होंगे वो एक डिफरेंट बैंड गैप को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए एक पर्टिकुलर मटेरियल कॉम्बिनेशन के लिए, जैसे गैलियम आर्सेनाइड एक पर्टिकुलर मटेरियल कॉम्बिनेशन है, ऐसे ही आप देखोगे आगे कि अलग अलग मटेरियल का कॉम्बिनेशन है। तो गैलियम आर्सेनाइड के लिए एक पर्टिकुलर बैंड गैप होगा, यानी कि इतनी एनर्जी का डिफरेंस होगा उनकी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। इसी तरीके से जो दूसरा कोई मटेरियल कॉम्बिनेशन लेंगे हम, तो उसके बीच में जो बैंड गैप है वो डिफरेंट होगा। तो इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट बैंड गैप की वजह से डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो ये लेज़र एमिट करता है इनकी वजह से, ठीक है। क्योंकि अलग अलग मटेरियल जो है वो अलग अलग बैंड गैप को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो इसके बेसिस पे अभी हम देखेंगे लेज़र मटेरियल कौन से यूज़ होते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक हल्की झलक देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर लेज़र्स, कि सेमीकंडक्टर लेज़र्स के टाइप क्या हैं। हालांकि हम इनको बाद में थोड़ा डिस्क्राइब वे में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी हम इसको केवल ये देख लेते हैं कि सेमीकंडक्टर लेज़र्स के जो है दो टाइप्स क्या क्या हैं। एक जो है आपका टाइप है वो है एज एमिटिंग लेज़र्स, और दूसरा है सरफेस एमिटिंग लेज़र। तो एज एमिटिंग लेज़र क्या है? तो these edge emitting lasers have the laser beam parallel to the surface of the junction region. So these have the laser beam parallel to the surface of the junction region. यानी कि जो जंक्शन का जो सरफेस है, ये जो जंक्शन है पीएन जंक्शन है ना, या एन और पी कहीं पे भी आप ले लो, तो ये जो जंक्शन है, ठीक है, अगर लेज़र बीम जो है इस जंक्शन के पैरेलली इमिट हो रही है, ठीक है। यानी कि ये है अगर आपका जंक्शन, और इसी के पैरेलल यानी कि इसी डायरेक्शन में अगर लेज़र बीम इमिट हो रही है, तो तब उसको कहते हैं हम एज एमिटिंग लेज़र। यानी कि हमें वो इस पीएन जंक्शन के एज से निकलती हुई दिखाई देंगी जो लेज़र एमिशन होगा। ओके, सो दीज आर द एज एमिटिंग लेज़र्स। mirrors are produced by using the cleaved surface at the ends of the laser crystal. तो यहाँ पर जो है मिरर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, टिपिकली मिरर जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं by using the cleaved surfaces at the ends of the laser crystal. लेज़र क्रिस्टल की जो एंड्स हैं उन पे जो है क्लीव्ड सरफेस का यूज़ करके मिरर्स को प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रैग रिफ्लेक्टिंग स्ट्रक्चर्स एट द एंड्स ऑफ द क्रिस्टल, या फिर क्रिस्टल के एंड पे जो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रैग रिफ्लेक्टिंग स्ट्रक्चर अगर बना दें या बन जाए, तो उससे भी क्या है मिरर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो ये तो आपका हो गया एज एमिटिंग लेजर, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ओके, सो दूसरा है आपका सरफेस इमिटिंग लेजर। तो सरफेस इमिटिंग लेजर क्या है? दिस टाइप ऑफ लेजर्स हैव द लेजर बीम एमिटिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द जंक्शन रीजन। तो ये जो जंक्शन रीजन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर लेज़र जो बीम है वो इमिट होती है। तो ये लेज़र जो बीम है ये इस जंक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इमिट होती है। ओके, सो with multi-layer Bragg reflecting mirrors incorporated into the crystal. तो क्रिस्टल में जो है कई कई लेयर्स की ब्रैग रिफ्लेक्टिंग मिरर्स जो है लगाई जाती हैं, तो तब जो है ये लेज़र बीम जो है प्रोड्यूस होती है। ओके, नाउ दी लेज़र मटेरियल्स सेमीकंडक्टर लेज़र्स आर बेस्ड अपॉन one of the 4 different types of material depending upon the wavelength region of interest. So इस पे हमें अगर कौन सी वेवलेंथ की जो है लाइट इमिट लेज़र लाइट चाहिए, ठीक है, कौन सी वेवलेंथ की लेज़र लाइट चाहिए, उसके लिए सेमीकंडक्टर लेज़र्स जो है वो हम डिफरेंट मटेरियल्स को चूज़ करके सेमीकंडक्टर लेज़र्स को जिस हमें जो वेवलेंथ की जो है लाइट चाहिए, जिस वेवलेंथ की जो है हमें लेज़र लाइट चाहिए, उस टाइप का लेज़र हम बना सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द
मटीरियल्स, तो उन डिफरेंट टाइप ऑफ वो डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल्स क्या क्या हैं. सो 3 of them are from थर्ड टू फिफ्थ सेमी कंडक्टर्स. सो थर्ड टू फिफ्थ सेमी कंडक्टर्स क्या हैं, जो कॉलम थर्ड एंड फिफ्थ है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, वहां से थर्ड कॉलम से और फिफ्थ कॉलम में जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको उनको आपस में मर्ज करवा करके क्या कर सकते हैं, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल को जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. सो कॉलम थर्ड एंड फिफ्थ, तो कॉलम थर्ड में जो एटम्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि देखेंगे आप, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम. ठीक है. ऐसे ही फिफ्थ में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी. ओके. सो दीज इनका कॉम्बिनेशन, अब इनका इसका इनके साथ कॉम्बिनेशन, ऐसे ही इसका इनके साथ कॉम्बिनेशन, इसका इनके साथ कॉम्बिनेशन, या इसका इनके साथ कॉम्बिनेशन, या फिर इसका जो है इन सब के साथ कॉम्बिनेशन अलग अलग, और इसका जो है इन सब के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन. ठीक है. जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड हो गया, सॉरी, ये इस टाइप का हो सकता है कोई. ठीक है. बट अभी हम देखेंगे, जैसे आपने एक अभी एग्जांपल देखा गैलियम आर्सेनाइड, तो गैलियम और आर्सेनिक इन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन था. ठीक है. सो इस थर्ड और फिफ्थ कॉलम के जो एटम्स हैं उनका यूज करके द सेमीकंडक्टर लेजर्स इन दिस कैटेगरी आर बेस्ड ऑन गैलियम आर्सेनाइड for a wide range of lasers in the near infrared and extending into the visible using gallium arsenide or aluminium gallium arsenide layers material. तो यहाँ पे जो है सेमीकंडक्टर लेजर्स, ये जो सेमीकंडक्टर लेजर्स हैं इस कैटेगरी के, यानी कि कॉलम थर्ड टू फिफ्थ वाले, ठीक है, इसमें ये जो मटेरियल है सेमीकंडक्टर लेजर्स हैं, इसमें ये किस पे बेस है, गैलियम आर्सेनाइड. ठीक है. और ये एक वाइड रेंज में हमें जो है लेज़र लाइट देता है, नियर इंफ्रारेड एंड एक्सटेंडिंग, ये नियर इंफ्रारेड रीजन की लाइट इमिट करता है, लेकिन इसको विजिबल रीजन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग गैलियम आर्सेनाइड, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड लेयर्ड मटेरियल. इनकी लेयरिंग करके अगर हम जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाते हैं, तो वहाँ पर जो है हमें एक ऐसा लेज़र, सेमीकंडक्टर लेज़र मिलता है जो कि एक विजिबल रीजन की वेवलेंथ को प्रोवाइड करता है. ओके. तो सिंस बैंड गैप अकर्स एट 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनके जो बीच में जो बैंड गैप है वो है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो है अगर कम होगा बैंड गैप, तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे, जिसके कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो यहाँ पर कितने 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए वो सेमीकंडक्टर की तरह यूज हो सकता है. ऐसी इंडियम फॉस्फाइड है, इंडियम फॉस्फाइड बैंड गैप जिसके बीच में है 1.35. ठीक है. इंडियम फॉस्फाइड, तो आप देख रहे हैं इसमें इंडियम फॉस्फाइड, इंडियम और यहाँ से फॉस्फेट लिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो इंडियम फॉस्फाइड यहाँ से एक मटेरियल बन गया ये. ओके. तीसरा है गैलियम नाइट्राइड. तो गैलियम नाइट्राइड भी आप देख लो, यहाँ से गैलियम लिया और यहाँ से नाइट्रोजन. ठीक है. तो गैलियम नाइट्राइड एक कॉम्बिनेशन ये हो गया. तो गैलियम नाइट्राइड जो है इसका बैंड गैप जो है वो 3.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड दस अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ ब्लू एंड अल्ट्रावायलेट लेजर्स. हालांकि इसका बैंड गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो इस ये जो है ब्लू एंड अल्ट्रावायलेट लेजर्स को प्रोवाइड करते हैं. द अदर मटेरियल्स आर दी सेकंड एंड सिक्स्थ कंपाउंड्स. सो सेकंड एंड सिक्स कंपाउंड्स जो हैं वो कॉलम सेकंड मटेरियल्स जो हैं ये हैं जिंक एंड कैडमियम, एंड सिक्स्थ है सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम. ठीक है, टीई. सो इनके कॉम्बिनेशन से, इनका कॉम्बिनेशन जिंक सल्फाइड हो गया, चाहे जो है जिंक सेलेनियम हुआ या कैडमियम सेलेनियम हुआ, इस तरीके से जो है ये मटेरियल बनाया जाता है. तो जिंक सेलेनियम हैज़ अ बैंड गैप ऑफ 2.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर्म्स द बेसिस
फॉर ब्लू ग्रीन सेमीकंडक्टर लेजर्स। तो ब्लू ग्रीन सेमीकंडक्टर लेजर्स जो है ये लाइट जो है प्रोवाइड करता है। ओके, सो सम बैंड गैप एनर्जीज ऑफ सेवरल सेमीकंडक्टर लेजर कंपाउंड। तो ये यहाँ पर एक पूरी टेबल दे रखी है जिसमें कि हम देख सकते हैं 3rd to 5th कॉलम के कंपाउंड्स दे रखे हैं ये, ठीक है। यानी कि उनके मटेरियल, उनके जो अलग अलग एटम्स हैं उनका हम कॉम्बिनेशन, उनके उन मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन अगर हम करेंगे तो हमें ये मटेरियल मिलेंगे। जैसे एल्यूमिनियम आर्सेनाइड, ये 3rd and 5th के, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम एंटीमोनाइड, बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्राइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम एंटीमोनाइड, और इंडियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, इंडियम एंटीमोनाइड, ठीक है। तो ये हैं इनके एब्रिवेशन जो है वो ये हैं, और इनकी बैंड गैप जो है वो ये है। ओके, ऐसे ही 2nd and 6th कॉलम के जो कंपाउंड्स हैं इन के मटेरियल्स हैं उनका कंपाउंड बना के, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड, कैडमियम टेलोराइड, जिंक सल्फाइड, जिंक सेलेनाइड, जिंक टेलोराइड, ये भी अदर्स हमने थोड़ा बहुत एक आध के देखे हैं, लेकिन इनमें जो है सारे कंपाउंड्स दिखा रखे हैं इसमें कि कौन कौन से जो हैं वो सेमीकंडक्टर लेजर्स में यूज़ हो सकते हैं। ओके, सो ये 300 केल्विन पे है एक्चुअली, ये जो इसकी एनर्जी गैप है वो 300 केल्विन पे दे रखी है, ठीक है। जबकि हम जो है वो बात कर रहे थे, जब हमें ऊपर पढ़ रहे थे, वो 0 केल्विन पे है कि 0 केल्विन पे जो है उनके बीच में जो एनर्जी गैप होना चाहिए वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। जबकि ये जो एनर्जी गैप दे रखा है ये 300 केल्विन पे, तो उसको आप देख लीजिए, इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा कैसे हो गया ये, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा कैसे है यहाँ पर एनर्जी गैप। तो ये सब जितनी भी एनर्जी गैप्स हैं ये 300 केल्विन पे हैं। ओके, जब हम रूम टेम्परेचर से भी जो है रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा हम जब टेम्परेचर दे दें किसी मटेरियल को तब। सो ये आपके पास सेमीकंडक्टर लेजर्स के आज हमने थोड़ा सा बेसिक्स पढ़े हैं, और इसके बाद जो है हमने इसमें जो मेन सेमीकंडक्टर लेजर्स हैं, सेमीकंडक्टर लेजर्स के लिए हमें अब जो पढ़ना है इसमें वो पढ़ना है ऑप्टिकल गेन, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम इसमें पढ़ेंगे ऑप्टिकल गेन, ठीक। तो ऑप्टिकल गेन पढ़ना है, ऑप्टिकल गेन इन सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, probability of occupancy of states, and interaction with light, and then joint density of states, absorption and emission rules, and light amplification. ओके, एंड देन गेन कोफिशिएंट और अदर जो इसके टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे, बट पहले हम ऑप्टिकल गेन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही।